सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। அன்பார்ந்த தமிழ் சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்ப நாட்டின் தென்கோடியான கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஒரு அலை கிளம்பி இருக்கு. இந்த அலை நீண்ட தூரம் பயணிக்க போகுது. திரு அண்ணாமலை அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல 1991ஆம் ஆண்டு இதே கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஏக்தா யாத்திரை புறப்பட்டு காஷ்மீர் வரை சென்றிருந்தேன். ஆனால் இந்த முறை நான் காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரியை நோக்கி வந்திருக்கிறேன். நாட்டை துண்டாட வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களை காஷ்மீர் மக்கள் தூக்கி எறிஞ்சிட்டாங்க. நம்ம தமிழக மக்களும் இப்போது அதைத்தான் செய்ய போகிறார்கள். திமுக காங்கிரசின் இந்தி கூட்டணி கண்டிப்பாக துணை தெரியப்படும். காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி இந்த வெற்றி என்ற தலைக்கணம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு, அது முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டுவிடும். साथियों, डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है, और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। बीजेपी ने बड़ी संख्या में एयरपोर्ट बनाए, हमारे नाम पर उड़ान स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले हेलीकॉप्टर स्कैम है। हमारी खेलो इंडिया और टॉप स्कीम से देश ने खेलों में ऊंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनके नाम पर CWG स्कैम का दाग है। हमने खनिज सेक्टर में रिफॉर्म को लागू किया, इंडी अलायंस के नाम पर कॉल स्कैम की कालिख लगी है। ये लिस्ट बहुत लंबी है और यही इंडी अलायंस की सच्चाई है। நண்பர்களே, இந்த திமுக காங்கிரஸோட இண்டி கூட்டணியால தமிழ்நாட்டில் எந்த விதமான வளர்ச்சி திட்டங்களையும் முன்னெடுக்கவே முடியாது. அவங்களுடைய வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மோசடியும் ஊழலும் தான் முதன்மையாக இருக்கும். அவங்களோட கொள்கையே பார்த்தீங்கன்னா அரசியலில் ஆட்சிக்கு வந்து கொள்ளையடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஒற்றை இலக்கு தான் அவங்களுடைய முதல் இலக்கு. ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பாஜகவோட பல்வேறு மக்கள் நல திட்டங்கள், அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் திமுக இண்டி கூட்டணியில கோடிக்கணக்கான ஊழல்கள். ஆப்டிகல் ஃபைபர் மற்றும் 5G இதெல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சி மக்களுக்கு கொடுக்குது.
நம்ம பேர்ல டிஜிட்டல் இந்தியாங்கிற திட்டம் இருக்கு. ஆனா இந்திய அலையன்ஸ்ல லட்சக்கணக்கான கோடிகளில் நடைபெற்ற ஊழல் இருக்கிறது. 2G ஊழல் இருக்குது. இந்த 2G கொள்ளையில் பெரும் பங்கு வகித்தது திமுக தான். பிஜேபி ஏராளமான விமான நிலையங்களை கட்டியது. பிஜேபி பேர்ல உடான் திட்டம் இருக்கிறது. ஆனா இண்டி கூட்டணியில நாட்டின் பாதுகாப்புடன் விளையாடும் ஹெலிகாப்டர் ஊழல் தான் இருக்கிறது. நம்ம கேலோ இந்தியா மூலம் விளையாட்டுத்துறையை மிக உயர்ந்த உன்னதமான இடத்திற்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறோம். ஆனால் அவங்க பேர்ல CWG ஊழல் தான் முதன்மையாக இருக்கிறது. கனிமத்துறையில பல்வேறு புதிய சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்து இந்தியாவின் கனிம வளத்தை நம்ம மேம்படுத்தி கொண்டிருந்தால் அவங்க பேர்ல கனிமத்தில் நிலக்கரியை கொள்ளையடித்த நிலக்கரி ஊழல் தான் இருக்கிறது. இந்த பட்டியலை சொல்லிட்டே போனா ரொம்ப நீளமாக போய்கொண்டே இருக்கும். एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक खत्म हो गई है और चुनाव की तारीख को लेकर हुई बैठक करीब 40 मिनट तक चली और बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 नए चुनाव आयुक्तों ने हिस्सा भी लिया। नए चुनाव आयुक्त को लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी गई है। करीब 40 मिनट तक चुनाव आयोग की ये बैठक हुई। तीनों चुनाव आयुक्तों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। तस्वीरें भी सामने आई है। चुनाव आयोग की बैठक दिल्ली में चल रही थी और 40 मिनट तक ये बैठक चली है। चुनाव आयोग की टीम तैयार है और जल्द ही अब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। तो आज ही पदभार संभाला है 2 नए चुनाव आयुक्तों ने और ऐसे में अब उनको ब्रीफिंग लगातार दी जा रही है और हो सकता है जल्द ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो, जिसका बेसब्री से इंतजार भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। तो 2 चुनाव आयुक्तों ने कमान संभाल ली है और 3 लोगों की ये पूरी टीम होती है, जिसमें आपको बता दें कि आज जो मीटिंग हुई उसमें तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई, तारीखों को लेकर चर्चा भी की गई। यानी कि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है और अब चुनाव का शंखनाद यानी कि तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। इसे लेकर ही ये बैठक रखी गई थी और यहाँ ये बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। तो लोकसभा चुनाव करीब हैं और इंतजार चुनाव आयोग का ही किया जा रहा था कि जल्द ही अब उसकी ओर से चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल इस वक्त जमीन पर उतरे हुए हैं और लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। हर कोई चाहता है कि अपनी सत्ता बचाए या फिर सत्ता में वापसी पाए और उसके लिए लोकसभा चुनावों की तारीखों तक का ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। और ये चुनाव आयुक्तों की यहाँ पर बैठक हुई है। 40 मिनट तक कहा जा रहा है बैठक चली और अब जल्द ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी नीरज कुमार जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नीरज, सबसे पहले तो अपडेट्स बताइए कि इस बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा की गई? देखिए, अब तक की जो तैयारी थी उससे लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों को जानकारी दी गई। तमाम अधिकारियों ने जानकारी दी, क्योंकि आमतौर पे चुनाव आयोग की बैठक को लीड जो करता है, हालांकि तीनों चुनाव आयुक्त अपने अधिकार में बराबर होते हैं, लेकिन पहले नंबर पे मुख्य चुनाव आयुक्त ही आते हैं। तो तमाम चुनाव आयुक्त थे इस बैठक में।